Assalamualaikum students, how are you? Hope you all will be fine. Today we are starting a new chapter, unit number 12, information handling. Our first topic is frequency and frequency distribution. Now what is frequency? The number of times a value occurs in a data is called a frequency of the value. For example, in this data 3 to 2 numbers, there is a data given. So the data consists of 15 values. So in this value there are numbers that occurs 2 to 3 times in this data. The number of times a value occur in the data is called the frequency. यानी जितनी दफ़ा जो नंबर हमारे इस डाटा में आया है, वो जितनी दफ़ा आया है उसकी काउंटिंग वो हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी. यानी the frequency of 3 marks is 2 because the number 3 is coming in this data 2 times, 1 and 2. And the frequency of 5 mark is 3 because 5 occurs in this data 3 times, so 1, 2 and 3. So the frequency of 7 mark is 4 because 7 occurs in this data 4 times, so 1, 2, 3 and 4. This is called the frequency of a value. Now frequency distribution. To write a data in the form of table in such a way that the frequency of each class can be observed at the once is called frequency distribution. इसमें क्या होता है कि हम जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखना होता है कि एक डाटा में जो है वो फ्रिक्वेंसी कोई नंबर कितने टाइम्स आया हुआ है, उसके लिए हम पहले क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं, एक टेबल हम बना लेते हैं और इसको हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं. उन क्लास इंटरवल्स में से हम ऐसा तो नहीं कर सकते जैसे हमें एक डाटा फ्रॉम 1 to 100 गिवन है तो हम 1 to 100 नंबर्स तो नहीं लिख सकते एक टेबल में. तो हम उसके लिए पहले इंटरवल्स बना लेते हैं, यानी 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30. सो उसमें फिर हम जो है वो अपनी फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि जी 1 to 10 नंबर्स जो हैं वो कितने नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फर्स्ट, लुक फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू which is 45 and 28 respectively for this table, and number of classes to be made which is 6 for this. And for finding the size of class interval we use the formula. Size of class interval is equals to largest value minus smallest value divided by number of classes, and our largest value is equals to 45 and smallest value is 28. So 45 minus 28 divided by 6 is equals to 17 by 6, which is equals to 2.8 and which is approximately equals to 3. So we make the interval number 3 intervals in this classes. So moving towards our example, listed below are the scores of 50 students in the 60 marks test. So these are the numbers, and make a frequency distribution table making 6 classes of equal size by tally marks. Now here first we search that which is our lowest value. So our lowest value is equals to 25 and highest value is equals to our highest value 54. Now lowest value is equals to 25 and highest value is equals to 54. So total classes to be made is equals to 6. Now we have to size of class interval. So we take the size of class interval is equals to 54 minus 25 divided by 6, which is 29 divided by 6 is equals to 5 approximately. So we make a difference of 5 in class intervals. So we make class intervals as 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54. सो इसमें जब हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए हैं तो हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑकर इन ए डाटा गिवन डाटा. सो यहाँ पे हमने इस तरह मुश्किल हो जाएगा कि हम देखेंगे कि 25 to 29 हमारे कितने नंबर्स कैसे है टैली मार्क्स लगाना. हम क्या करेंगे, हम अपना डाटा देखेंगे और नंबर जितने जैसे लाइन वाइज हमें दिए गए हैं वैसे ही हम इसमें
टैली मार्क लगाते जाएंगे। जैसे 25 है वो हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल में, 33 है वो हमारे सेकंड वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा, और 26 जो है वो हमारे फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में, एंड सो ऑन। इसी तरह हम वैल्यूज़ लगाते जाएंगे। टैली मार्क लगाने का तरीका क्या है, हम अपना साइन जो है ये 1 1 इस तरह लगाते जाते हैं, लेकिन जब हमारा 4 हो जाता है और 5 है उसको हम इस तरह एक टेढ़ी लाइन लगा देते हैं और 5 का एक हमारा ग्रुप बन जाता है। इसी तरह हम 5 5 के ग्रुप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी है 6, सेकंड की है 5, थर्ड की है 13, 4 की है 12, फिफ्थ की है 5 और 6 वाले की है 9। टोटल फ्रिक्वेंसी 50 बन गई है। और जब हमने देखना हो कि हमारा टेबल जो है वो ठीक है या नहीं, तो हम टोटल जो आपका डाटा गिवन होता है उसके नंबर्स को काउंट करें। अगर तो वो टोटल फ्रिक्वेंसी के इक्वल है तो आपका टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक बना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। Construct a frequency distribution table for the above data with 7 classes of equal size and class interval 10. Here we have to make 7 classes and class interval, they give the class interval 10. So first of all we find the lowest value. So our lowest value in this is 35 and the highest value is, here the highest value is 99. And the total classes made is equals to 7 and the size of class is equals to 10. Now we have to make the frequency distribution table. So first of all we have to make the class intervals. So there is the size of class is equals to 10. So 35 to 44. 35 to 44 is equal, the mid values are is equals to 10. So 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64, 65 to 74, 75 to 84, 85 to 94 and 95 to 104. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 classes are made here. Here we made an extra column of class boundaries. Class boundaries column is for question number 6. In which they asked that make the histogram for question number 1 to question number 5. So the requirement of class boundaries is not in question number 1 but for question number 6 we made histogram for of class question number 1. So we made class boundaries here. और class boundaries में क्या होता है कि आप जो हैं वो 0.5 का डिस्टेंस जो है वो लेते हैं अपने क्लास इंटरवल से। सो यहाँ पे 34.5 to 44.5, 44.5 to 54.5। द लास्ट जो आपकी क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री होती है वो इसकी स्टार्टिंग क्लास बाउंड्री होती है नेक्स्ट वाले की। सो 54.5 to 64.5, 64.5 to 74.5, 74.5 to 84.5 and 84.5 to 94.5 and 94.5 to 104.5। अब हमने जो है वो अपनी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने टैली मार्क्स को। और टैली मार्क्स का हमें कैसे पता चलेगा, अब हर एक का अगर देखें, जैसे अगर हम 35 से लेकर 44 तक अगर हमने देखना है कि फ्रिक्वेंसी क्या है तो इसमें ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे क्लास इंटरवल्स आपके सामने हैं और आपने क्या करना है कि देखते जाना है कि जो आपके पास नंबर आ रहा है नेक्स्ट वो किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पे पहला 35 नंबर है तो वो मैंने देखा कि वो मेरे फर्स्ट क्लास इंटरवल में है तो मैंने फर्स्ट टैली मार्क जो है वो 1 लगा दिया। उसके बाद 55 है तो वो मैंने देखा तो वो मेरा थर्ड वाले क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है तो वो मैंने वहां पे 1 निशान जो है वो अपना लगा दिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम अपने टैली मार्क्स लगा रहे होते हैं तो हमारा साइन ये सिंपल 1 1 ये वाला साइन होता है, बट दिस इज नॉट फॉर लेवल 5 बिकॉज जब हम 4 तक पहुंचते हैं तो जो 5 वाला साइन हमें लगाना होता है वो हम उसके ऊपर एक टेढ़ी लाइन लगाते हैं तो ये हमारा 5 बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इसके टैली मार्क्स लगाएंगे तो आप देखें 35 इन क्लास इंटरवल 1, 55 in third class interval, 64 in third class interval, 70 is in fourth class interval and so on। ये सारे हम इसी तरह क्लास
अपना टैली मार्क्स लगाते जाएंगे और हमारी ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 3, 5, 8, 9, 6, 5, 4। और जब आप फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो आपका फ्रिक्वेंसी का टोटल जो है वो इक्वल्स टू टोटल नंबर्स होना चाहिए। आप अपने टोटल नंबर्स को काउंट करें और अपनी फ्रिक्वेंसी का टोटल करें। अगर ये दोनों सेम है तो आपका ये टेबल बिल्कुल ठीक बना है। स्टूडेंट्स, टू मेक हिस्टोग्राम, फर्स्ट वी ड्रा x axis and y axis. Make class boundaries along with the x axis and make frequency along with y axis. And now after this we have to make the bars of histogram, and bars of histograms are made according to the frequency of intervals or class boundaries. For example, 34 to 44.5 our frequency is 3. Now 34 to 44.5, 2 to 4 the mid interval is 3, so we point lines here and we draw a bar here for first interval, and for second interval our frequency is 5, 44.5 to 54.5, and frequency is 5, so 44.5 to 54.5 the frequency is 5, so we make another bar. The bars of histogram are attached with one another, and we draw the next bars according to this pattern. और इसमें आपने क्या करना है कि आपने इनका जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रखना है। जैसे यहाँ पे मैं फ्रॉम 0 to 34.5 अगर मैंने अपना डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर रखा है, तो आपकी हर एक बार का जो डिस्टेंस है आपने 1 सेंटीमीटर रखना है, और हर एक बार के बाद आपने अपनी जो आपकी क्लास बाउंड्री है वो लिखते जाना, और हर क्लास बाउंड्री को एक दफा लिखना है। ऐसे नहीं कि जैसे 34.5 to 44.5 और अगेन फिर 44.5, ऐसे नहीं, 34.5 to 44.5, 44.5 to 54.5, 54.5 to 64.5, and 64.5 to 74.5, and then so on. इसी तरह हमने अपनी बाउंड्री जो है, ये फ्रिक्वेंसी जो है ये सेम ऐसे नहीं लिखनी कि 3, 5, 8, 9, 6, 4 इस तरह लिख लेनी है। हमने देखना है कि हमारी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है और हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है। अब हमारी फ्रिक्वेंसी में हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो 9 है, यानी कि हम अपनी फ्रिक्वेंसी 10 तक ले सकते हैं पॉइंट्स, और फ्रॉम 0 to 10 हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ले लेनी है, और फिर जो हमारा फ्रिक्वेंसी होएगी जिस क्लास बाउंड्री की, हम वहाँ पे इसका जो है वो हिस्टोग्राम पे जो है वो अपनी बार जो है वो बना लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा शेडेड कर लेंगे, तो ये आपकी जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो रेडी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।